Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all in biology at fingertips with Vijay. My dear friends, we are discussing glycolysis, the process of anaerobic respiration. That is the respiration which do not use oxygen, that it occur in absence of oxygen. हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, so called fermentation में glucose is converted, the one molecule of glucose is converted into two molecules of pyruvate, and if oxygen is not present, it is not available to the cell, then the pyruvate is converted into lactic acid and ethanol, and there is net gain of 2 ATP molecules. There is net gain of 2 ATP molecules. Okay. Now, the ATPs, what is the valence sheet of ATP for the glycolysis? See there. 1 ATP is used in the step number 1 and 1 ATP is used in the step number 3. So 2 ATPs are used in total. 2 ATPs यूज हुई, एक स्टेप नंबर 1 पे और एक स्टेप नंबर 3 पे. बनी कहां? Where the ATP got formed? It is the step number 6 and step number 9. Step number 6 और 9 पे हर एक पे 6 पे भी 2 ATP बनी और 9 पे भी 2 ATP बनी. The total ATP formed in glycolysis are 4. So there are total 4 ATPs. 2 we have used in the 4. They are formed at step number 6 and step number 9. 6 and 9 step number पे. और use कहाँ हुआ? Step number 1 and 3. So the net gain of ATP is 2 ATP. This is the glycolysis. Then glycolysis is also called AMP pathway. EMP. EMP stands for, E stands for Amgen, M stands for Meyerhoff, P stands for Paranas. These are the 3 scientists who proposed this pathway of glycolysis. It is the common step between aerobic and anaerobic respiration. तो मैं बात कर रहा था कि देखिए क्या बेटा, हमने देखा कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और इथेनॉल में और 2 ATP ही टोटल बनती है. It is a kind of the incomplete oxidation of food. Now question is that what happens if oxygen is available to the cell? अगर सेल को ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो पायरुवेट का क्या फेट है, उसका क्या भाग्य है? So I want to tell you, if oxygen is present, then what happens? See, this is very important. If oxygen is present, or I can say in O2 presence, in oxygen presence, in O2 presence, this pyruvate will undergo oxidative decarboxylation. It is, the name of the process is oxidative decarboxylation. बेटा ध्यान से सुनेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत सिंपल और इजी स्टेप है. The pyruvate in the presence of oxygen, it undergo oxidative decarboxylation to form acetyl coenzyme A. पहले आप यहां देखेंगे, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा क्या स्टेप्स है. It will form acetyl coenzyme A, ऐसे लिखा जाता है. I must want to tell you, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बेटा, that acetyl coenzyme A is a 2 carbon compound. Pyruvate is a 3 carbon compound, my dear friends. ध्यान से देखिए, मैंने कहा था आपसे, मैंने बताया है आपको, ये 2 कार्बन कंपाउंड है और ये क्या है बेटा, 3 कार्बन कंपाउंड है. मैंने बोला है कि अगर 3 कार्बन से 2 कार्बन कंपाउंड बने तो प्रोसेस कौन सा होगा? यस, डिकार्बोक्सिलेशन. इट मींस
there is release of one CO2 at a time. जब मैं लास्ट में आपको बैलेंस शीट तैयार करूंगा और रेस्पिरेशन की इक्वेशन को वेरीफाई करूंगा, इन सभी स्टेप्स का यूज करूंगा बेटा। हमने पढ़ा था C6H12O6, we have studied it, that glucose C6H12O6 in the presence of oxygen, it will form carbon dioxide plus water plus ATP. हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे। इस ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसे कन्वर्जन होता है इसका ये देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। बेसिकली 4 स्टेप्स आर देयर एज आई हैव टोल्ड यू। कहा था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अगर आपको याद हो, पहला मैंने कहा था इट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड वन इज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। सो ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट वन स्टेप इन एरोबिक रेस्पिरेशन and second one is oxidative decarboxylation. ग्लाइकोलिसिस हमने एनारोबिक में भी डिस्कस किया था, वही स्टेप्स है। ग्लूकोज इज कन्वर्ट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट में बदला जाता है, कन्वर्ट होता है। अब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, आज हम इसे देखेंगे। द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ध्यान से देखिए आप, द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। In this there is a release of one carbon dioxide at each step. एक बार में एक पाइरुवेट का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन देगा, दूसरी बार में दूसरा मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा। हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड दे विल गॉट फ्रॉम 2। ध्यान से देखिए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में बनेंगे। और इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड। एक बार में एक बनेगा और दूसरी कन्वर्जन में दूसरा। तो यहाँ पे एस्टाइल कोएंजाइम के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे बेटा, 2 molecules will get formed. Is it clear now? तो हमने देखा कि 2 मॉलिक्यूल्स इसके बनते हैं, किसके, एसिटाइल कोएंजाइम के, किसमें, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में। डिकार्बोक्सिलेशन तो क्लियर है। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेट हो रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसके लिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो देयर मस्ट बी द, मैंने बोला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर 2 sides of a coin। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होती है बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कभी अलग नहीं हो सकते। अगर एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरी तरफ क्या होगा, देयर मस्ट बी रिडक्शन। सो आई कैन से हियर वन मोर प्रोसेस इज देयर एंड इट इज NAD। NAD जो है, the full form of NAD I am writing here, it is nicotinamide, it's a cofactor, nicotinamide, adenine, A for adenine, N for nicotinamide, A for adenine, D stands for dinucleotide. Okay, it is nicotinamide adenine dinucleotide. Clear? This NAD positive, it means if it is a positive charge is present over this means it is a oxidized state. So this is an oxidized NAD. It will get reduced to form NADH plus H plus. So here reduction is there or a pyruvate will get oxidized. तो ऑक्सीडेशन हुआ और साथ में क्या हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, किसका, पाइरुवेट का, और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देगा। टू कैरी दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, some cofactors are required here. One is NAD, one is TPP. TPP stands for T stands for thiamine, P stands for pyro, and P stands for phosphate. Thiamine pyrophosphate. Thiamine pyrophosphate किसके लिखा बेटा? It is TPP. One of the cofactor required to convert the pyruvate to the acetyl coenzyme.
हम डिटेल में इस प्रोसेस को पढ़ेंगे अभी, पहले आप देखिए। तो वन इज टीपीपी, वन मोर कोफैक्टर इज रिक्वायर्ड हियर एंड दिस इज lipoic acid. It is lipoic acid. Okay, one more cofactor is required here. It is nothing, it is magnesium divalentine. Magnesium divalentine. Okay, then one more cofactor is there. It is coenzyme A. Coenzyme A. It is here. I can write down here. Coenzyme A. Okay. One more is there. It is FAD. Which one? FAD. What is FAD? It is flavin. F stand for flavin. A stand for adenine. Flavin, adenine. A stand for adenine. F stand for flavin. A stand for adenine. And D stand for dinucleotide. Which one? Dinucleotide. So FAD stands for flavin adenine dinucleotide. Clear? Okay. So one more cofactor here, it is FAD in oxidized state. It is also in oxidized state. देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप। बेसिकली ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ये जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है बेटा। सी नाउ व्हाट इज द मल्टी स्टेप नेचर। पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ टीपीपी, magnesium ion divalentine, coenzyme A, lipoic acid, FAD and NAD, it will get oxidatively decarboxylated to form acetyl coenzyme A. And the enzyme is very important. Enzyme here is, enzyme का नाम यहाँ लिख रहा हूँ प्रोसेस के लिए, आपको पता है ग्रीन पेन से ही लिखता हूँ। It is pyruvate, सबस्ट्रेट का नाम है पायरुवेट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेस प्रोसेस के साथ हमने एस लगा दिया, और डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो कार्बोक्सिलेस भी होगा नेचर उसका, इसलिए हम इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स। द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इतने ज्यादा हमने कोफैक्टर्स यहां पे डिस्कस किए, 5 to 6 कोफैक्टर्स आर देयर। सो दिस बेसिकली ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स। क्या होता है इनमें, मैं आपको एक एक करके स्टेप्स बताता हूं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन माय डियर फ्रेंड्स। पहला जो स्टेप है दैट इज द डिकार्बोक्सिलेशन। पायरुवेट, देखिए आप, मैं सबका यूज करूंगा कोफैक्टर्स का, सभी कोफैक्टर्स का यूज करूंगा। पायरुवेट, क्या बोल रहा हूं मैं, पायरुवेट will combine with the TPP and release a molecule of CO2. TPP is thiamine pyrophosphate ना, तो pyruvate will combine with the TPP. During this process, a molecule of CO2 will be released to form pyruvate TPP complex. क्या बन जाएगा पहले स्टेप में, pyruvate TPP complex बन जाएगा बेटा। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सब स्टेप ऑफ दिस स्टेप, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का जो मल्टी सीरीज रिएक्शन है, इसके जो सब स्टेप्स हैं मैं आपको बता रहा हूं।
तो पहला था पायरुवेट टीपीपी के साथ मिलेगा, CO2 रिलीज होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा और पायरुवेट टीपीपी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सेकंड स्टेप है now the dehydrogenation or oxidation. The dehydrogenation, basically removal of hydrogen. Dehydrogenation of pyruvate TPP complex to acetyl group of lipoic acid. इस lipoic acid एक और कोफैक्टर है, इसका जो एसिटाइल ग्रुप है, ओके, पायरुवेट, ठीक है, टीपीपी कॉम्प्लेक्स लाइपोइक एसिड के साथ मिलेगा और जो लाइपोइक एसिड का एसिटाइल ग्रुप है उसके कारण उसका डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा इस ग्रुप का, इस कॉम्प्लेक्स का, पायरुवेट टीपीपी कॉम्प्लेक्स का। और होगा क्या, देयर इज, आप देखें जो लाइपोइक एसिड है इट इज इन द ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है। अगर डिहाइड्रोजनेशन पायरुवेट कॉम्प्लेक्स टीपीपी कॉम्प्लेक्स की होगी तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, उसको एक्सेप्ट भी तो करना है ना किसी ने, वो कौन करेगा, वो लाइपोइक एसिड करेगा। And it become acetyl group of lipoic acid and it become acetyl lipoic acid and it is in the reduced form now. In this process the TPP will got released. जो TPP है बेटा वो क्या हो जाता है, रिलीज कर जाता है। बेसिकली ये जो एसिटाइल लाइपोइक एसिड है, क्योंकि इसमें पायरुवेट भी है तो यहां आप लिखे कॉम्प्लेक्स, बेसिकली द कॉम्प्लेक्स ऑफ द पायरुवेट एंड लाइपोइक एसिड। नाउ दिस इज एसिटाइल लाइपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स। देयर इज एन एडिशन ऑफ coenzyme A into the acetyl lipoic acid and with this there is a release of the lipoic acid in the reduced form. क्या होगा देखिए बेटा, एसिटाइल लाइपोइक एसिड कोएंजाइम के साथ मिलेगा, मिल रहा है ना, और यहां से देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट है किसका, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का, और देयर इज द रिलीज ऑफ रिड्यूस्ड लाइपोइक एसिड। समझ रहे हैं बात को, जो एसिटाइल लाइपोइक एसिड यहां पे बना है वो कोएंजाइम ए के साथ मिलेगा और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देगा, और जो लाइपोइक एसिड है दैट विल बी रिलीज, वो क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, देन सी नाउ हमने यहां पे देखा कि एफएडीबी है, एनएडीबी है। देखिए मैं आपको बता दूं कि फाइनली क्या होने वाला है। फाइनली हमने यहां देखा NAD will get reduced to the NADH plus H positive, और मैं आपको बता दूं एक पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा एक मॉलिक्यूल, तो एक NAD रिड्यूस्ड होगा और एक NADH बनेगा। जब दूसरा है तो दूसरा NAD कन्वर्ट होगा और NADH प्लस H पॉजिटिव बनेंगे। ये दो मॉलिक्यूल जो है बेटा NADH के फॉर्म होंगे कहां पे, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में। और याद रखें, I must want to tell you here because this is very important to know. This process is occurring in where? Occurring where? मैंने पहले लेक्चर में बोला है, कहां हो रहा है बेटा, ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में हुआ था ना। फिर ये जो पायरुवेट है ये मूव कर गया कहां, पहले साइटोप्लाज्म में था, अब ये पायरुवेट मूव कर जाता है कहां, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, बताया है मैंने आपको। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। याद रखें आप इस बात को। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो दो मॉलिक्यूल NADH प्लस H पॉजिटिव के बने, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बने, और इससे पहले जो दो मॉलिक्यूल है वो कहां बन चुके हैं बेटा, इट इज इन द स्टेप नंबर 5E of the glycolysis which occur in the cytoplasm. कहां, ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में होती है ना, तो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टेप नंबर 5B में
2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव भी बने हैं। मैं आपको बार बार इन चीजों के ऊपर एम्फेसिस दे रहा हूं, बार बार आपको बता रहा हूं। वो क्यों? क्योंकि मुझे आपसे इनकी आगे रिक्वायरमेंट रहेगी जब हम डिस्कस करेंगे, तो आप भूले ना। और ये कहां बने, मैं लिख देता हूं आपके लिए। द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इज कहां बेटा? इट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये जितना भी सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो रहा है कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो क्या होता है? जो पायरुवेट है दैट विल मूव टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड this particular step, this series of the sub steps, it occur in mitochondrial matrix. Now see, अब lipoic acid reduced है, क्या होता है? This lipoic acid which is reduced, it first reduce the FAD, not the NAD. NAD is the final, it is the final. इससे हमें ATP मिलेगा, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने लिखा है रिएक्शन में, आप देखें, lipoic acid reduced will combine with the FAD and NAD to form the lipoic acid oxidized, जिस रूप में हमने यूज किया था उसको यहाँ पे, और FADH plus H positive and NADH plus H positive. क्लियर है? ये क्या है हम देखेंगे इसको, यहाँ पे देखें आप। It is something like this. I can write down it like this. देखें आप यहाँ पे, it is lipoic acid रिड्यूस्ड है ना, रिड्यूस्ड। जो रिड्यूस्ड है वो कब ऑक्सीडाइज होगा बेटा? लाइपोइक एसिड ऑक्सीडाइज कब हो जाएगा बताइए आप? इसका ऑक्सीडेशन होगा, पर दूसरी तरफ क्या है, दूसरा फेस क्या है? उस फेस में रिडक्शन होगा। देयर मस्ट बी एन रिडक्शन एंड इट इज द रिडक्शन ऑफ FAD टू FADH plus H positive. Is it clear? तभी तो बोला था डिहाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विद द लाइपोइक एसिड, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका। यहां पे तो इसको रिड्यूस किया था ना हमने, तो डिहाइड्रोजनेशन हुआ। अब हम रिवर्स कर रहे हैं, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और FAD रिड्यूस हो रहा है। ओके, जब इतना हो गया उसके बाद क्या होगा? नाउ the FADH2 और FADH plus H positive क्या होगा बेटा? देखें, it will get combined with what? NAD. NAD ऑक्सीडाइज स्टेट में है, ये रिड्यूस स्टेट में है। जो FAD है वो कैसा है बेटा? इस चीज को आप समझे, ये रिड्यूस स्टेट में है ना, यहां पे रिड्यूस था, FAD को हमने रिड्यूस किया, देखो यहां पे ये ऑक्सीडाइज स्टेट था, ये रिड्यूस स्टेट है। लाइपोइक एसिड का रिड्यूस तो स्टेट है, वो ऑक्सीडाइज FAD से मिला, लाइपोइक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और FADH plus H positive मीन FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का रिड्यूस स्टेट बन गया। अब जो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD है रिड्यूस स्टेट में है, वो NAD से मिलेगा और अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को NAD को दे देगा, और NAD जो है वो NADH plus H positive रिड्यूस स्टेट बना देंगे, और खुद जो FAD है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मीन टू से फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का रिड्यूस स्टेट निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की ऑक्सीडाइज स्टेट के साथ मिलेगा, और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की ऑक्सीडाइज स्टेट बन जाएगी, और निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की रिड्यूस स्टेट बन जाएगा, जो यहां पे हो रहा है। क्लियर है बात? तो तभी मैंने यहां पे लिखा, ये जो मैंने प्रोसेस आपको समझाया इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर? तो नाउ इट इज वेरी क्लियर टू अस दैट कि जो लाइपोइक एसिड रिड्यूस्ड है वो पहले किसको? FAD को रिड्यूस करता है, फिर FAD जो रिड्यूस्ड है वो NAD को रिड्यूस करेगा। और ये जो रिड्यूस्ड NADH plus H positive है, it is basically generating the ATP in the ETS.
ETS में जाके यही वो मॉलिक्यूल है जो एनर्जी रिलीज करेगा। वो यहां माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हुआ वो भी, और जो यहां NADH+ H पॉजिटिव है वो भी ETS। और ETS कहां होता है बेटा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इट मींस मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो NADH+ H पॉजिटिव स्टेप नंबर 5 ऑफ ग्लाइकोलिसिस में बना, और NADH+ H पॉजिटिव जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बना, ये साइटोप्लाज्म में बना और ये मैट्रिक्स में ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में बना, इनका यूज कहां पे होगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर है? सो this is the oxidative decarboxylation, my dear friends. Oxidative decarboxylation, it is the multi-step, multi-series reactions process in which pyruvate is converted into acetyl coenzyme A with the release of one CO2 molecule at each time, or in total 2 CO2 and 2 molecule of NADH+ H positive will get formed in the presence of various coenzyme and cofactors, TPP, lipoic acid, FAD, magnesium ion and coenzyme A। ये coenzyme थोड़ा सा मैं जब आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं क्रैब साइकिल के लिए आपके साथ मूव करूंगा, तब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। पर यहां मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि ठीक है, ये जो NADH है ये तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर है, पर जो NADH+ H पॉजिटिव है ये तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हुआ था ना, क्योंकि रिएक्शन तो साइटोप्लाज्म में हो रही है, तो ये तो बना ही साइटोप्लाज्म में। देन नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ दिस NADH+ H positive will move from the cytoplasm to the inner membrane of the mitochondria to form ATP in ETS. One more thing I want to tell you, my dear friends, usually this NADH+ H positive and this NADH+ H positive ये ETS में जाके इतना ETS में जाके बेटा ये जो 1 NADH+ H positive है, it will give us 3 ATP each। हर एक मॉलिक्यूल NADH+ H पॉजिटिव का 3 ATP बनाता है। ये भी जो यहाँ पे स्टेप नंबर 5B में है ये भी मूव करते हैं और इनर मेम्ब्रेन पे जाके 3 ATPs बनाते हैं। अगर वे रूट नंबर 1 से जाए, ये क्या रूट नंबर 1 होता है 2 होता है आपके साथ बाद में बात करूंगा, और अगर वो रूट नंबर 2 से जाते हैं तो 2 ATP ईच, मैं ईच बोल रहा हूं और एक मॉलिक्यूल के लिए बोल रहा हूं, इन रूट नंबर 2। ये तो 3 ही बनाते हैं, पर यहां से जो रास्ता अंदर के लिए है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन का, उसमें 2 रूट है, रूट नंबर 1 एंड रूट नंबर 2। We will discuss in the next lecture about the root number 1 and root number 2. These are called the subtle systems. करेंगे डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे 3 ATP बनेगा या 2 ATP बनेगा, डिसाइड होता है कौन सा सेल है, डिपेंडिंग ऑन द सेल द रूट्स आर देयर। NADH+ H positive of the glycolysis, they will move to the inner membrane of the cell depending upon what kind of the cell it is involved in the respiration। कौन से सेल में रेस्पिरेशन हो रही है उसके अनुसार वो मूव करता है। पर आज हमने पढ़ा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन is a multi-step series in which pyruvate is converted into the acetyl coenzyme A, releasing carbon dioxide, forming NADH+ H positive as an energy source in the presence of pyruvate dehydrogenase complex and cofactor TPP, thymine pyrophosphate, magnesium divalent ion, coenzyme A, lipoic acid, FAD, flavin adenine dinucleotides. The multi-step processes involving first the decarboxylation of the pyruvate on combining with TPP to form pyruvate TPP complex,
Then the dehydrogenation of the pyruvate TPP complex to the acetyl group of lipoic acid occur. The lipoic acid, when it will join with the pyruvate TPP complex, it is oxidized. Now it will form lipoic acid, acetyl lipoic acid complex, which is reduced, and the TPP will got released. Basically होता क्या है, यहाँ पे जो पायरुवेट है वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन। पर छोड़िए आप इसको। देन अभी तक देखिए, डिकार्बोक्सिलेशन पायरुवेट टीपीपी कॉम्प्लेक्स में हुआ, फिर डिहाइड्रोजनेशन पायरुवेट टीपीपी कॉम्प्लेक्स लाइपोइक एसिड के साथ मिलके एसिटाइल लाइपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स बना देगा। एसिटाइल लाइपोइक एसिड को एंजाइम ए के साथ मिलेगा। एसिटाइल को एंजाइम ए जो फाइनल प्रोडक्ट है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, वो बन जाएगा और लाइपोइक एसिड रिड्यूस्ड फॉर्म में रिलीज हो जाता है। एंड द रिड्यूस्ड लाइपोइक एसिड इज फर्स्ट oxidized by the flavin adenyl dinucleotide FAD, and it will get reduced to the FADH plus H positive, and then FADH plus H positive will get oxidized the NAD to NADH plus H positive, my dear friends. Thanks a lot. For more videos, subscribe my YouTube channel Biology at Fingertips with Vijay. We will get more and more knowledge of all the topic concerned. For mnemonics, kindly refer to my YouTube channel for the more and more videos. Thank you. Thanks a lot.